Hello students, today we are going to take up the remaining questions of miscellaneous exercise. So it is chapter 1 miscellaneous exercise and we already have completed till question 7. I am going to take question 8 today. It is given a non-empty set X. Consider P of X which is set of all subsets of X. जनरली P of X पावर सेट ऑफ X होता है. लेट्स सी कि इसने कैसे डिफाइन किया क्वेश्चन में. एंड पावर सेट ऑफ X मींस पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स. डिफाइन द रिलेशन R in Px as follows. एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. Already he has given Px is the set of all subsets of X. So that means Px is the power set of X. एक रिलेशन कैसे डिफाइन किया? फॉर सबसेट्स A, B in Px, फॉर सबसेट्स A, B in P of X, it is read as A is related to B. Here R means relation, R is the relation. So it is A is related to B. If and only if and only if, ये I double F डालेंगे तो इसका मतलब ये if and only if A is subset of B. ये रिलेशन तभी बनेगा जब A B का सबसेट होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं है. Is R an equivalence relation? Justify your answer. देखें, इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी. रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. अब यहाँ पे A is related to B, एक एलिमेंट है A, ठीक है. तो फॉर रिफ्लेक्सिव दिस A must belong to कौन सा? P of X, ठीक है. अब ध्यान से देखें, रिलेशन तभी बनता है जब A B का सबसेट है. क्या A B का सबसेट है? बिकॉज A is subset of A as every set is subset of itself. Every set is subset of itself. Therefore, it is reflexive. ठीक है. सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि इफ A is related to B, then B should also be related to A. अगर A B बिलोंग करते हैं, ठीक है, Px को, तो B A B करने चाहिए. I will write if A is subset of B, then it is not necessary that B should be subset of A. Then it is not necessary that B is also subset of A. ठीक है ना. A B का सबसेट है तो जरूरी नहीं कि B भी A से B जो है वो सबसेट A का हो. That is AB belongs to P of X, but BA does not belong to P of X. A भी बिलोंग करते हैं पर BA नहीं करते. Therefore it is not symmetric. सिमेट्रिक नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. हमें यही प्रूव करना था whether it is reflexive or not. Therefore it is not reflexive. Oh, sorry, it is not equivalence relation. इक्विवेलेंस के लिए तीनों का होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है तो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस. आगे वर्ड रिलेशन लिख लेना, इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. हाँ, बट अगर ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब तो जरूरत ही नहीं पड़ी.
ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर ए बी का सबसेट है एंड बी इज सबसेट ऑफ, लेट्स से डी ले लेते हैं कोई, अगर ए बी का सबसेट है, बी डी का है, तो ए हैज टू बी सबसेट ऑफ डी, ट्रांजिटिव बनेगा, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनता तो इक्विवेलेंस नहीं बन सकता। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Let's take up the next question. It's question 9. Now, I have already told you that for this session 2020-21, binary operation is not included in our syllabus. तो ये जो क्वेश्चन 9 है, क्योंकि अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिक्स प्रॉब्लम्स होंगी, रादर वो बाइनरी ऑपरेशन का हमने टॉपिक ही नहीं लिया, तो क्वेश्चन 9 इज पर्टेनिंग टू बाइनरी ऑपरेशन, तो वो मैं नहीं कर रहा। So I am moving on to question 10 then. It is find the number of all onto functions. I think onto functions आपको याद होंगे। onto function थे जब रेंज और कोडोमेन कोइंसाइड करते हैं, यानी जो रेंज है वही कोडोमेन है, ऐसे फंक्शंस को हम onto function कहते हैं। In other words, when every image has some pre-image, then it is onto function. The question is, it is question 10. Find the number of all onto functions from the set. एक set दिया 1, 2, 3, so on up to n. To itself. ये set, मैं इस set को suppose कर लेता हूँ, let's say A is the set. तो A से A पे onto functions कितने बनेंगे? अब now please listen it. What is n of A? n of A means total number of elements in A, that is n. ठीक है। Now, so number of elements in set A is n. हमें पता करना है number of onto relations कितने बनेंगे। कहने का मतलब है हमारे पास n elements हैं और n चाहिए हमें arrangement बनाने के लिए, ठीक है। This implies number of onto functions. onto functions, ठीक है, function f from a to a, onto functions कौन से, f is a function from a to a, कितने बनेंगे, n हमारे पास total elements है and we require n to make up the permutations, पूरे elements ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है स्पेशल कंडीशन की एलिमेंट नहीं लेना, तो that is npn, ठीक है। npn is n factorial upon n minus n factorial, which is n factorial, 0 factorial 1 होता है, so it is n factorial is the answer for it. Let me move on to the next one. Question 11. S is a set, S set है हमारा ABC, T set है 1, 2, 3, find f inverse of the following function from f functions f from s to t if it exists. फंक्शन f है, कहां से, s to t पे अगर एग्जिस्ट करता है। पहला है f, क्या फंक्शन दिया है, a3 b2
B2 C1। उसने कहा F इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमें बताना क्या है। आप मैपिंग लेने दोनों की, उससे बहुत इजी हो जाएगा। ये A है, किससे एसोसिएशन है 3 से, B की किससे 2 से, C की किससे 1 से। द फंक्शन इज 1 1 एंड R2। देयरफॉर F इनवर्स एग्जिस्ट और F इनवर्स क्या आ जाएगा इसमें, F इनवर्स आ जाएगा द रेंज बिकम्स डोमेन, ये 3 ये 2 ये 1 एंड डोमेन बिकम्स रेंज। 3 की एसोसिएशन A से, 2 की एसोसिएशन B से और 1 की एसोसिएशन C से। तो कैन आई राइट हियर देयरफॉर F इनवर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 3A then 2B then 1C. So that is F inverse. Let me move on to the second part. This was first part. Second part is F equal to A2 then B1 C1 इनवर्स के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, द कंडीशन वाज द फंक्शन शुड बी ए बाइजेक्शन। कहने का मतलब 1 1 भी होना चाहिए R2, जैसे इस केस में था 1 1 था R2 था और इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करता था एंड दैट इनवर्स वी हैव गॉट इट हियर आल्सो, ये इसका इनवर्स है। अब देखिए इसकी मैपिंग ड्रॉ करते हैं। मैपिंग से बिल्कुल इजी हो जाता है समझना। ये F है, A की एसोसिएशन किससे 2 से, B की किससे 1 से, C की किससे 1 से। द फंक्शन इज ऑन टू बट इज नॉट 1 1 बिकॉज द फंक्शन F is not 1 1 therefore F inverse does not exist ही नहीं करता। तो क्वेश्चन में था अगर एग्जिस्ट करता तभी फाइंड करते हैं, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फाइंड भी नहीं कर सकते। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Question 12 is again pertaining to binary operation, so I am not doing that. 13 is again pertaining to binary operation, 14 is pertaining to binary operation. So I start with 15. तो बाइनरी ऑपरेशंस के जो क्वेश्चन है वो नहीं कर रहे हैं, अब सिलेबस में नहीं है। 15 क्वेश्चन देखें क्या, A is equal to A is a set with elements -1 0 1 2 -1 0 1 2. B is a set -4 -2 0 2. And FG is the function from A to B. FG is the functions from A to B. A से B के फंक्शन। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, fx इससे डिफाइन हो रहा है x स्क्वायर माइनस x बिलोंगिंग टू A and gx is defined as 2 mod of x minus 1 upon 2 minus 1 x belonging to A.
आर एफ एन जी इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर्स, क्या एफ और जी इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर्स, लेट्स सी। अगर एफ और जी इक्वल है तो एफ और जी डिफाइन है, इनको निकाल लीजिए। सबसे पहले x किसको बिलोंग करता है, a को, तो मैं f ऑफ -1 निकालता हूं, ठीक है। f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल टू, इट विल बिकम 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। अब f ऑफ 0 निकालते हैं, f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, f ऑफ 0 0 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, it is 0 का स्क्वायर माइनस 0 that is 0, then f of 1 कितना बन जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 that is again 0, then we are left with f of 2, वो बनेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 ठीक है, एंड therefore जो f फंक्शन है वो क्या बन गया, वो बन गया -1 था तो 2 था उसके साथ, 0 के साथ 0, देन 1 के साथ 0 एंड 2 के साथ 2, दिस इज द फंक्शन f। अब लेते हैं g का, g ऑफ x है ये, तो सबसे पहले लेट मी फाइंड आउट, और x किसको बिलोंग कर रहा है, a को, a के एलिमेंट्स ये हैं, तो g ऑफ -1 निकालते हैं, वो निकलेगा 2 मॉड ऑफ -1 अपॉन 2, -1 एक और भी है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस -1, अब एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1/2 बनता है -3/2, तो जैसे ही मॉड हटा वो प्लस हो गया, +3/2 हो गया, और ये -1 लास्ट में यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेट मी सी, -1 है यहाँ पे, यस इट इज हियर, देन व्हाट इट बिकम्स, दिस इज 2 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 7 माइनस 2, आई थिंक इट इज 5 है। अब देखिए यहीं से पता चल जाता है f एंड g आर नॉट इक्वल, f ऑफ -1 2 है और g ऑफ -1 5/2 है, इक्वल होते तो जो f ऑफ -1 आ रहा है वही g ऑफ -1 भी आना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन चेक द अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म द कंप्लीट फंक्शन। आप कर लेते हैं, g ऑफ 0 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस 0 -1/2 यानी कि -1/2 -1, एंड बट इट विल बी 2, सॉरी आई एम रॉन्ग, it is being multiplied, 2 is being multiplied, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, so let me correct this one, ठीक है, it is this, मार हटेगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन 2 मल्टीप्लाई है इससे, तो ये इस दिन से बन जाएगा 2 × 3/2 -1, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, राइट, 3 - 1 2 आंसर आएगा, तो यानी पहला एलिमेंट तो मैच कर गया, ठीक है। तो नेचुरल है, मुझे चेक करना पड़ेगा दूसरे के लिए भी, सो इट इज 2 × 1/2 -1, 1/2 क्यों आया, जैसे ही मॉड हटेगा ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये 0 आ गया, सेकेंड एलिमेंट भी मैच कर गया, तो नेचुरल है बाकी भी निकालने पड़ेंगे, तो लेट मी इरेज दिस वन। अब मेरे पास एलिमेंट बचे हैं 1 एंड 2, एक चीज वो चेक करनी पड़ेगी, इट इज फंक्शन फ्रॉम a टू b, जो b के ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 0 0 2 यहाँ बिलोंग करने चाहिए, 0 and 2 is here, it's correct, so let me erase this one, I don't need this now, 0 1 और 2 मुझे चेक करना है, ये लाइन भी निकाल देते हैं, fx हमने कर लिया है, तो let me erase this one also, तो ये हमने कर लिया, g ऑफ 0 जो है वो बनेगा 2 × यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे, -1/2 आएगा,
ये मॉड जो है जैसे ही मॉड को हम खोलेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये बनेगा। तो दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 2 भी सेम आ, मतलब f ऑफ -1 2 था, g ऑफ -1 भी 2 है, f ऑफ 0 भी 0 है, g ऑफ 0 भी 0 है। तो बाकी एलिमेंट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट होगा, पहले हमने -1 चेक किया, फिर 0 अब 1 पे g ऑफ 1 वो आ जाएगा ट्वाइस mod 1 minus 1 by 2 minus 1. So what it will be? Let's see. 2. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. Minus 1. Cancel 0. Third element also matches. So the probability is कि equal ही लग रहे हैं। अब ले रहे हैं g of 2. वो आएगा 2 into 2 minus 1 upon 2 minus 1 which is equal to 2 into ये बनेगा 3 by 2 है ना, -1 that is 2. So let's define the function g also now. इसको मिस कर देते हैं। अब g फंक्शन क्या बनेगा प्लीज चेक करते हैं। g फंक्शन क्या बना, -1 था तो कितना आया, 2 आया, -1 2, करेक्ट। इसके बाद 0 था तो 0 के साथ 0 ही है, देन 1 के साथ 0, 1 के साथ 0 एंड 2 के साथ 2, 2 के साथ। सो दिस इज द सेम फंक्शन एज f। देखिए g और ये f, ठीक है, therefore f and g are equal, f and g are equal. I think that is clear to you. Let me erase this one. So moving on to the next question, that is question 16. Let's see what the question is. A is a set with elements 1, 2, 3. The number of relation containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. कह रहा है रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो 1, 1 2, 2 और 3, 3 ये तो आएंगे जरूर, इनको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कहता है कि ये एलिमेंट्स 1, 2 और 1, 3 भी इंक्लूड करने हैं, 1, 2 करना है, 1, 3 भी इंक्लूड करना है, ठीक है। कह रहा है कि अगर इन दो एलिमेंट्स को इंक्लूड करना ही है, बाकी आप जो मर्जी रख लें, तो कितने रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होने चाहिए और ट्रांजिटिव भी होने चाहिए। देखिए ये तो इंक्लूड किए, और ये रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम कंडीशन है एक होना चाहिए, वो मैंने रख लिया। अब 1, 2 बनेगा तो सिमेट्रिक बनाना तो 2, 1 भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको लेना ही एलिमेंट को, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए ये लेना पड़ेगा। 1, 3 है तो 3, 1 भी लेना पड़ेगा। लेट मी चेक क्या ये ट्रांजिटिव बन रहा है। 2, 1 belongs to the relation, let's say this is the relation, and 1, 3 belongs to the relation, ठीक है। अगर 2, 1 कर रहा है, 1, 3 कर रहा है, तो 2, 3 करना चाहिए। देखें 2, 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 1, 3 कर रहा है। ट्रांजिटिव के लिए 2, 3 करना चाहिए, पर वो नहीं है, दैट इज नॉट प्रेजेंट। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर मैं इसके साथ कोई भी, अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, कोई भी, तो वो ट्रांजिटिव अभी नहीं है, पर अगर मैं एलिमेंट कोई ले लेता हूं ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो यही एक रिलेशन बनेगा जो सिमेट्रिक है
रिफ्लेक्सिव भी है पर ट्रांजिटिव नहीं है। आप चेक कर ले, कोई भी एक एलिमेंट ले लें, जैसे अब बचा क्या, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया। अगर मैं 2 3 लेता हूं, 2 3, तो अभी 2 3 ही चाहिए जो इसको ट्रांजिटिव बना दे। 2 3 लूंगा फिर 3 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही ऐसा रिलेशन है जो अभी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो नंबर पूछा था उसने, इट शुड बी ओनली वन रिलेशन बट नॉट ट्रांजिटिव। सो पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में 1 लिखा है। There is only one such relation which is possible including these two elements, ठीक है ना, that is important. Let me come to the 17th one then. Again the set is given with these three elements 1 2 3. The number of equivalence relation containing 1 2. Equivalence में सारे आते हैं, सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, और इसने बोला 1 2 को तो इंक्लूड करना ही करना। अब देखेंगे 1 1 तो किया, 1 2 भी, सॉरी 2 2 कर ले पहले, 2 2, अच्छा उसके बाद ये तो करेंगे क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। लेट्स से R इज द रिलेशन। इसके बाद इसने कहा 1 2 को तो जरूर लेना है, 1 2 को लिया। अब इसको सिमेट्रिक बनाना है, इक्विवेलेंस है, तो 2 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 लिया, 2 1 हुआ। अच्छा इस समय 1 1, हाँ ये बन गया, रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया और ट्रांजिटिव भी बन गया। ट्रांजिटिव की एक बार कंडीशन चेक कर लें, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, राइट। बस यही कंडीशन थी, इसी के साथ बनेगा। 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 है, 1 2 1 2 1 से 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 है, यस। एक तो ये बन गया, ठीक है। ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब जो दूसरा एक और रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो बनेगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर तो यूनिवर्सल रिलेशन मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी तीनों को इंक्लूड करेगा। तो एक तो ये बनेगा, एक यूनिवर्सल बनेगा, तो देयर विल बी टोटल नंबर 2 सच रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बी पार्ट है विल बी द करेक्ट आंसर। बी का है 2, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई एम रेजिंग दिस वन आल्सो। So let's move on to the next one. 17 हो गया, 18th क्वेश्चन ना। 18 क्या है? f is a function from real number to real number, ठीक है, with a signum function। signum function का हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। अगर इसमें कोई डाउट है तो इसको जो पिछली वीडियोस है उसमें चेक करना। हमने सिग्नम फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, व्हाट इट इज, उसका ग्राफ ड्रा किया था। इट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, 0 व्हेन x इज एग्जैक्टली 0 एंड -1 व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। g इज अनदर फंक्शन with the greatest integer function, that means g of x is the greatest integer function का भी हमने ग्राफ ड्रा किया था और एक्सप्लेन किया था व्हाट इट इज, ठीक है। इसका मतलब है जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स होंगे। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज नाउ। डज फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0 1? क्वेश्चन है फॉग एंड गॉफ coincide
in 0 1. क्वेश्चन इज डज, क्या ऐसा होता है? चेक कर लेते हैं। हम ले लेते हैं व्हेन, कंडीशन तो लेनी पड़ेगी कोई ना कोई, यहां पे ले लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो हम देखते हैं fx की क्या वैल्यू आएगी। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो fx तो 1 आएगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 है तो g ऑफ x को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। g ऑफ x 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो यहां कोई भी इंटीजर आ जाएगा। g ऑफ x कैन बी एनी इंटीजर। 0 से बड़ा तो इट इज एनी इंटीजर, ठीक है। 0 से बड़ा मतलब 0.1। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं ऐसे लेता हूं 0.1, वो उसकी वैल्यू 0 आती है। एनी इंटीजर इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, पर्टिकुलर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है इसकी, करेक्ट। नाउ लेट्स डिफाइन फॉर क्या होगा, f ऑफ g ऑफ x, और f ऑफ g ऑफ x को इट कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि g ऑफ x जो है, gx जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। gx इज मॉड x है, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लूं, लेट मी राइट इट इन दिस मैनर। g of x, it is greatest integer function x, and that is it can take any integral value, लिख लेते हैं, any integral value equal to r greater than 0, equal to r greater than 0। तो हमने जब 0 से x को 0 से बढ़ा लेना है, 0.1 भी हो सकता है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2.7। तो जो gx की वैल्यू आएगी वो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आएगी, या तो 0 के इक्वल होगी, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां पे ये बन जाएगा f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। x ग्रेटर देन 0 है तो आई कैन नॉट डिफाइन इट, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर आएगा, ठीक है। तो नेचुरल है कि 0 से बड़े इंटीजर्स जो है डिफाइन नहीं है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। गॉफ निकालते हैं, दैट इज g ऑफ f ऑफ x। इसको चेक करते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, fx की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगी g ऑफ 1, और g ऑफ 1 का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, जो 1 ही है, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। एक 1 आ रहा है, एक नॉट डिफाइंड आ रहा है। कैन यू राइट द लास्ट लाइन, देयरफॉर फॉग एंड गॉफ डज नॉट कोइंसाइड इन 0 1, इसके अंदर कोइंसाइड नहीं करते। क्या हमें ये शो करना था कि 0 और 1 तक ही लेना था, 1 भी इंक्लूडेड था। तो यहां पे स्टिल इसकी जो वैल्यू है, अगर हम 0 1 की भी बात करें तो या 0 आ जाएगी या 1 आ जाएगी। स्टिल आई कैन नॉट डिफाइन द स्पेसिफिक वैल्यू। So let's move on to the next one. I think we have completed the exercise. 19th question is again pertaining to binary operation. So this is complete. So next we are going to start with the inverse trigonometric functions.